Hello students, we are doing the 13th chapter, that is organisms and population. And in this chapter till now we have discussed what are the various levels of organization, what are various abiotic and biotic factors of environment, how we living organism are responding towards the abiotic factors and what are adaptations. और आज स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन. एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन मीन्स व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन और व्हाट आर द वेरियस features of population. Students, we all know what is meant by the term population. This we have already studied in our first lecture, levels of organization. तो पॉपुलेशन की स्टूडेंट डेफिनेशन क्या है? पॉपुलेशन जो है वो टोटल नंबर है इंडिविजुअल्स का ऑफ द सेम स्पीशीज ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया एट अ गिवन टाइम. मैंने स्टूडेंट्स तुम्हें बताया था कि वेन एवर वी आर डिफाइनिंग पॉपुलेशन वी मस्ट राइट पर यूनिट टाइम एट अ गिवन टाइम, बिकॉज पॉपुलेशन जो है वो विद टाइम वेरी करती है, विद टाइम जो है वो चेंज होती है. सो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स of the same species occupying a particular geographical area at a given time, that is known as what? Population. Now students, जो population है of a particular species, that is divided into स्मॉल सब ग्रुप्स, वो छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है. कभी भी तुम देखो कि पॉपुलेशन जो है वो कभी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती. कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे नंबर जो है वो इंडिविजुअल्स का ज़्यादा होता है. ठीक है, तो इस तरीके से सब ग्रुप्स बने होते हैं लोकल पॉपुलेशंस के. तो ये जो सब ग्रुप्स हैं पॉपुलेशन के, दीज आर नोन एज डीम्स और लोकल population. And what is demography, students? Demography is the study of human population. तो human population को study करना, that is known as what? Demography. Now students, today we are going to discuss what are the various attributes of population, characteristics of population. Characteristics में we are going to discuss these points one by one. First point है students pattern of distribution. दूसरा है variations in number. Third is birth rate, which is also known as natality. Fourth, death rate or mortality. Fifth, dispersal. Sixth, age structure. Seventh is the sex ratio and eighth is the population growth. Population growth जो students 8th point है of the characteristic of population, this we are going to discuss in detail in our next lecture, because population growth में हमने population growth curves के बारे में भी study करना है, which are very very important. Now student, पहला जो characteristic है population का, that is the pattern of distribution. Pattern of distribution means the phenomenon of distribution of individuals within the geographical boundaries of the population is known as dispersion. कि individuals जो हैं of a particular species वो किस तरीके से distributed है किसी एक particular geographical area में, that is known as pattern of distribution या dispersion कहते हैं उसको. Dispersion के students दो main patterns है. एक होता है clumped dispersion, एक होता है यूनिफॉर्म डिस्पर्जन. क्लम्प्ड डिस्पर्जन देखो ये दिखाया गया फिगर में, यहाँ पे इंडिविजुअल्स एग्रीगेटेड है इन पैचेस. देखो और जो इंडिविजुअल्स हैं वो पैचेस में इकट्ठे हैं. क्यों? वाई दे आर कलेक्टेड इन पैचेस? बिकॉज ये पर्टिकुलर जो एनवायरमेंट है, लोकल एनवायरमेंट जो है, दिस इज मोस्ट सुटेबल फॉर द इंडिविजुअल्स. सो क्लम्प्ड डिस्पर्जन्स में इंडिविजुअल्स जो हैं दे आर एग्रीगेटेड इन पैचेस वेयर द एनवायरनमेंट इज मोस्ट सूटेबल. और यूनिफॉर्म डिस्पर्जन में स्टूडेंट्स जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, विच इज शोन इन द नेक्स्ट डायग्राम. तो यूनिफॉर्म पॉपुलेशन में देखो स्टूडेंट्स ये दिखाया गया है कि किस तरीके से इंडिविजुअल्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो इवनली प्लेस्ड है. क्लम्प्ड में वो एग्रीगेटेड है इन पैचेस वेयर द एनवायरनमेंट दैट इज मोस्ट सूटेबल. तो ये दो टाइप के डिस्पर्जन है स्टूडेंट्स. एक होता है क्लम्प्ड डिस्पर्जन, दूसरा होता है यूनिफॉर्म डिस्पर्जन. Now, the next characteristic, that is the variation in numbers. Variation in numbers means the population of an area
डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, कभी देखा है कि पॉपुलेशन कांस्टेंट ही रहे, उसमें कोई चेंज ही ना आए, वेदर या इट इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज और इट इज़ नॉट गोइंग टू डिक्रीज, नो। पॉपुलेशन में कभी भी जो है पॉपुलेशन कांस्टेंट नहीं रहती, उसमें हमेशा कोई ना कोई चेंजेस आते हैं। चेंजेस आते हैं का मतलब क्या है कि जो नंबर है इंडिविजुअल्स का वो वेरी करता है एट डिफरेंट टाइम्स। तो ये जो वेरिएशन है इसको हम एक्सप्रेस्ड करते हैं स्टूडेंट्स एज पॉपुलेशन साइज। याद रखो स्टूडेंट्स, जो पॉपुलेशन साइज है, पॉपुलेशन साइज का मतलब क्या नंबर है इंडिविजुअल्स का, इसको हम डिनोट करते हैं विद लेटर एन। और दूसरी चीज़ क्या है स्टूडेंट्स, हम जो नंबर है पॉपुलेशन नंबर, उसको एक्सप्रेस करते हैं एज पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए हमने सिंबल यूज किया है डी। सो पॉपुलेशन किसी भी एरिया का कांस्टेंट नहीं रहता, उसमें हमेशा कोई ना कोई चेंजेस आते हैं एट डिफरेंट टाइप्स, और ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एज एन पॉपुलेशन साइज और एज डी दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। नाउ पॉपुलेशन साइज क्या है, व्हाट इज एन? एन याद रखो स्टूडेंट्स, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स of a species in a particular area at a specific time। देखो स्टूडेंट्स, हमेशा टाइम को जरूर मेंशन किया गया है, तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में क्या नंबर है इंडिविजुअल्स का at a specific time, this is known as population size। For example, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में 200 स्पीशीज पार्थेनियम के ग्रो कर रहे हैं, तो वहां पे पार्थेनियम का पॉपुलेशन साइज क्या हुआ स्टूडेंट्स? 200। नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम एट अ गिवन टाइम। यहां पे हमने पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम जो है नंबर देखना है इंडिविजुअल्स का एट अ गिवन टाइम, दिस इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या हो गया? व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट स्पेस। अब ये जो स्पेस है आइदर इट इज एन एरिया, ठीक है, अगर हम टेरिस्ट्रल देखें, लैंड पे देखें तो वहां पे तो हम एरिया देखेंगे, बट अगर हम किसी पॉन्ड के अंदर नंबर देख रहे हैं इंडिविजुअल्स का तो वहां पे हम एरिया थोड़ी ना देखेंगे, वहां पे हम वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। तो जो डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट, या तो मीटर स्क्वायर होगा। अगर हम एरिया की बात करेंगे वहां पे हम मीटर स्क्वायर लेंगे, अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स वहां पे हम मीटर क्यूब लेंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम एट अ गिवन टाइम। और याद रखो डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिवाइडेड बाय स्पेस, और ये स्पेस या तो मीटर स्क्वायर में है इफ इट इज एरिया, और इट इज इन मीटर क्यूब इफ इट इज वॉल्यूम। नाउ सो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है नंबर है इंडिविजुअल्स का ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी साइबेरियन क्रेन्स की हमें पता है कि जो भरतपुर सेंचुरी है, वेटलैंड्स हैं, वहाँ पे विंटर सीजन्स में साइबेरियन क्रेन्स जो हैं वो माइग्रेट करती हैं। तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है साइबेरियन क्रेन्स की एट भरतपुर वेटलैंड्स इन एनी ईयर दैट इज लेस देन 10। और अगर हम पॉन्ड के अंदर क्लमाइडोमोनास का नंबर देखें स्टूडेंट्स, वहाँ पे तो क्लमाइडोमोनास जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक जो है वो एल्गी है, तो पॉन्ड के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है क्लमाइडोमोनास की दैट इज इन मिलियंस। देयर इज मिलियंस ऑफ नंबर्स ऑफ क्लमाइडोमोनास इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पॉन्ड। अब पॉपुलेशन साइज जो है स्टूडेंट्स उसको हम परसेंटेज कवर में भी मेजर करते हैं या बायोमास में भी मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में 200 स्पीशीज पार्थेनियम प्लांट्स के हैं और एक ह्यूज बन्यान ट्री है, दे आर सीन, तो इस केसेस में स्टूडेंट्स जो परसेंटेज कवर और बायोमास ये मीनिंगफुल है टू शो द इंपॉर्टेंस ऑफ बन्यान ट्री। अब यहाँ पे देखोगे तो अगर हम देखें
पॉपुलेशन डेंसिटी देखें, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स देखें, पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम, तो पार्थिनियम की जो पॉपुलेशन डेंसिटी तुम कहोगे कि यहाँ पे तो नंबर पार्थिनियम का 200 है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी पार्थिनियम की 200 है। और अगर हम बनियान ट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो वो केवल 1 बनियान ट्री है इन दिस पर्टिकुलर एरिया। बट यहाँ पे बनियान ट्री का जो कवर है, जो बायोमास है, दैट इज मच मोर। तो यहाँ पे हम नंबर नहीं कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी को हम मेजर करने के लिए परसेंटेज कवर देखेंगे, उसका बायोमास देखेंगे, उसका वेट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो पार्थिनियम की ज़्यादा नहीं है। इन रिस्पेक्ट ऑफ बायोमास यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बनियान ट्री की ज़्यादा है देन दी पार्थिनियम। नाउ सो टोटल नंबर जो है स्टूडेंट्स, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट मेजर फॉर अ ह्यूज पॉपुलेशन। कई बारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को कैलकुलेट करना दैट इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट। तो वहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम वहाँ पे रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो मेजर करते हैं विदाउट नोइंग द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो वहाँ पे हम कोई ना कोई किसी के साथ उसे रेफर करके पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ फिशेज caught per trap indicates its total population density in the lake। अब लेक के अंदर हमने फिशेस की अगर सपोज पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करना है तो हम एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ी ना निकालेंगे कि हम टोटल नंबर ऑफ फिशेस को काउंट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक ट्रैप में कितनी फिशेस कॉट हो रही हैं, तो वो हमें उस पर्टिकुलर लेक की या पॉन्ड की पॉपुलेशन डेंसिटी बताएगा फिशेस की। कुछ केसेस में स्टूडेंट्स यहाँ पे इनडायरेक्ट एस्टिमेशंस भी किए जाते हैं पॉपुलेशन साइजेस के, जैसे टाइगर सेंसस जब इन नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स बेस्ड होता है, पग मार्क्स के ऊपर बेस्ड होता है या उनके फीकल पैलेट्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो यहाँ पे जो पग मार्क्स हैं टाइगर के या फीकल पैलेट्स हैं, उनको देख के ही एक इनडायरेक्ट एस्टिमेशन की जाती है अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द टाइगर्स। सो ये था नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। नाउ जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट, दैट इज द बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या है? पर कैपिटा बर्थ्स, या अगर इसको हम सिंपल टर्म्स में बताएं, बर्थ रेट का मतलब है कितने नए इंडिविजुअल्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं पर यूनिट पॉपुलेशन। एवरेज नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स एडेड पर यूनिट पॉपुलेशन, दैट इज नोन एज बर्थ रेट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, बर्थ रेट को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? बर्थ रेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो ऐड हुए हैं, एडेड, डिवाइडेड बाई what is the initial size of population। इनिशियल साइज क्या है पॉपुलेशन का, इस तरीके से हम बर्थ रेट को मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे एक पॉन्ड है उसमें 20 लोटस प्लांट्स हैं लास्ट ईयर, तो यहां पे इनिशियल पॉपुलेशन क्या है? 20 है। तो एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स जो है वो ऐड हुए, तो कितने प्लांट्स ऐड हुए हैं? 8 प्लांट्स ऐड हुए हैं और इनिशियल साइज क्या है पॉपुलेशन का? 20। तो इस तरीके से हम बर्थ रेट मेजर करेंगे किसका? लोटस का। तो बर्थ रेट कितना आ गया स्टूडेंट्स? 0.4 ऑफस्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर। देखो टाइम को मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है बर्थ रेट के केस में भी। नाउ अगर स्टूडेंट्स हमने ह्यूमन बींग्स का बर्थ रेट या नैटेलिटी जो है वो मेजर करना है, तो ह्यूमन बींग्स के केस में हम बर्थ रेट कैसे मेजर करते हैं? टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स इन दी पॉपुलेशन पर ईयर। टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स इन दी पॉपुलेशन पर ईयर, दैट इज द बर्थ रेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब देखो स्टूडेंट्स, जो बर्थ रेट है वो 2 टाइप का है। एक है पोटेंशियल नैटेलिटी या जिसको हम बायोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, दूसरा है रियलाइज्ड नैटेलिटी जिसको हम एक्चुअल बर्थ रेट भी कहते हैं।
अब पोटेंशियल नैटेलिटी या फिर बायोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? मैक्सिमम बर्थ रेट ऑफ स्पीशीज अंडर आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस। अगर हमने एनवायरमेंटल कंडीशंस को आइडियल रखा है, मैक्सिमम रिसोर्सेज दिए हैं, कोई डिजीज नहीं हो रही, कोई प्रेडेटर नहीं है, तो उस केस में बर्थ रेट जो है वो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम बर्थ रेट अंडर आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन दैट इज नोन एज पोटेंशियल नैटेलिटी। रियलाइज नैटेलिटी क्या होता है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है वो हमेशा आइडल तो होती नहीं है। कभी कोई प्रेडेटर आ गया, कभी फूड रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, कभी जगह रहने के लिए जो है वो एनफ नहीं है, स्पेस लिमिटेड है। तो एक्चुअल बर्थ रेट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशंस दैट इज नोन एज रियलाइज्ड नैटेलिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो बर्थ रेट क्या है? बर्थ रेट हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एडेड पर यूनिट पॉपुलेशन। और ह्यूमन बींग्स के केसेस में व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन पर ईयर। नाउ व्हाट इज द डेथ रेट और मोर्टालिटी? डेथ रेट जो है इट रेफर्स टू पर कैपिटा डेथ। पर कैपिटा डेथ मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइंग, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइड, कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हुई डिवाइडेड बाय क्या होगा? इनिशियल पॉपुलेशन साइज। What is the initial population? So for example students, 4 individuals in a laboratory, population of 40 fruit flies died during a week. 40 टोटल फ्रूट फ्लाइज हैं और इन अ लेबोरेटरी, और हर वीक 4 फ्रूट फ्लाइज जो है दे आर डाइंग। सो व्हाट इज द डेथ रेट ऑफ द फ्रूट फ्लाइज? डेथ रेट ऑफ द फ्रूट फ्लाइज इज इक्वल टू कितने फ्रूट फ्लाइज की डेथ हुई? 4। इनिशियल पॉपुलेशन साइज क्या है? 40। सो दिस इज 1/10 इक्वल टू 0.1 इज द डेथ रेट ऑफ द फ्रूट फ्लाई पर वीक। तो टाइम अगेन मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो लोटस के केस में हमने पर ईयर हमने रेफरेंस रखा था, यहाँ पे क्योंकि नंबर जो है वो फ्रूट फ्लाइज का बहुत ज़्यादा है, एक साल में तो नंबर मिलियंस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने यूनिट जो है वो छोटा रख लिया, यहाँ पे हमने वीक लिया है। सो दिस इज द डेथ रेट। तो अगेन अगर हम ह्यूमन बींग्स के केस में डेथ रेट देखते हैं, मोर्टालिटी, तो वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन पर ईयर। कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हुई पर 1000 इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन पर ईयर? दिस इज द डेथ रेट और मोर्टालिटी। अब जैसे हमने देखा कि जो नैटेलिटी थी वो 2 टाइप की थी, ठीक है, एक पोटेंशियल नैटेलिटी, एक रियलाइज्ड नैटेलिटी। इस तरीके से मोर्टालिटी भी 2 टाइप की है, एक है मिनिमम मोर्टालिटी, दूसरी है रियलाइज्ड मोर्टालिटी। मिनिमम मोर्टालिटी क्या होगी कि जब एनवायरमेंटल कंडीशंस आइडल हैं, अच्छी हैं, जब कोई प्रेडेटर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं हो रही, स्पेस जो है वो अनलिमिटेड है, फूड रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो उस टाइम डेथ जो है वो कम होगी। मोर्टालिटी जो होगा वो सबसे मिनिमम होगा। देखो नैटेलिटी जो थी, जब आइडल एनवायरमेंटल कंडीशंस थी तो नैटेलिटी मैक्सिमम होती है, बट मोर्टालिटी जो है वो मिनिमम होती है, इसको हम कहते हैं मिनिमम मोर्टालिटी। दूसरा क्या है? रियलाइज्ड मोर्टालिटी। अगेन एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है वो हमेशा आइडल तो होती नहीं है, तो एक्चुअल लॉस क्या है इंडिविजुअल्स का अंडर एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस और अंडर गिवन एनवायरमेंटल कंडीशंस। दिस इज द रियलाइज्ड मोर्टालिटी। नाउ वाइटल इंडेक्स क्या है स्टूडेंट्स? वाइटल इंडेक्स है दिस इज द परसेंटेज रेशियो ऑफ नैटेलिटी ओवर मोर्टालिटी। सो फॉर्मूला क्या हुआ वाइटल इंडेक्स का? नैटेलिटी डिवाइडेड बाई मोर्टालिटी इनटू 100। दिस इज नोन एज व्हाट? वाइटल इंडेक्स। ठीक है, सो अ वैल्यू ऑफ मोर देन 100 स्टूडेंट ये इंडिकेट करती है कि पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है। अगर वैल्यू वाइटल इंडेक्स की कम होती है इट मीन्स नेगेटिव ग्रोथ है, और अगर वैल्यू इसकी 100 होती है तो इट मीन्स देयर इज नो ग्रोथ। तो अगर 100 से नंबर ज़्यादा है तो इट मीन्स पॉपुलेशन बढ़ रही है, 100 से नंबर कम है तो पॉपुलेशन घट रही है, और अगर वाइटल इंडेक्स का नंबर इक्वल टू 100 है इट मीन्स देयर इज जीरो ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। Now, next feature or next characteristic or attribute of population. So, fifth attribute is the dispersal.
डिस्पर्जल का मतलब इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन डिस्पर्स्ड, किस तरीके से वो फैल रहे हैं, मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया एट वन टाइम और द अदर ड्यूरिंग देयर लाइफ. सो दीज रिवील इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन. तो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन से स्टूडेंट्स पॉपुलेशन जो है उसकी डिस्पर्जल हो रही है. इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? परमानेंट entry of additional persons into the existing population. जैसे इंडिया में बाकी कंट्रीज के लोग आके रह रहे हैं, हमारे पंजाब स्टेट में देखें तो यहाँ पे यूपी या बिहार के लोग आके रहते हैं. सो दिस इज नोन एज एमिग्रेशन. परमानेंट एंट्री हो रही है एडिशनल पर्सनस की इनटू द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन. तो एमिग्रेशन जो है वो पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इट विल इंक्रीज द पॉपुलेशन साइज. दूसरा क्या है? एमिग्रेशन. एमिग्रेशन का मतलब परमानेंट डिपार्चर ऑफ सम पर्सन्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन. अब पंजाब में एमिग्रेशन हो रही है बिहार से या यूपी से, बट पंजाब के लोग जो हैं वो पंजाब छोड़ के कनाडा जा रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है. तो ये जो डिपार्चर है पर्सन्स का फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, दिस इज नोन एज एमिग्रेशन. तो जो चेंज आया पॉपुलेशन के साइज में वो किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? बर्थ कितना हुआ प्लस एमिग्रेशन कितना है माइनस डेथ कितनी हुई है और एमिग्रेशन कितना है. ठीक है, तो एक इमिग्रेशन और बर्थ्स जो है वो पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज करती हैं और डेथ और जो एमिग्रेशन है वो पॉपुलेशन साइज को डिक्रीज कर रहा है. तो जो चेंज हुआ पॉपुलेशन साइज का दैट इज इक्वल टू बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस एमिग्रेशन. सो दिस इज द नेक्स्ट एट्रीब्यूट दैट इज द डिस्पर्सल. नाउ ये देखो स्टूडेंट्स, एक फिगर में बहुत अच्छा तरीके से दिखाया गया है. सपोज ये जो हमारा एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है, तो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को इंक्रीज कौन करेगा? बर्थ्स इंक्रीज करते हैं. ठीक है, और ये एमिग्रेशन जो है इमिग्रेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन साइज को, और डेथ जो है वो पॉपुलेशन साइज को डिक्रीज करेगा, और एमिग्रेशन जो है वो भी पॉपुलेशन साइज को डिक्रीज करेगा. ठीक है, सो इस तरीके से डिस्पर्सल जो है दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग ऑन द पॉपुलेशन साइज. नाउ नेक्स्ट एट्रीब्यूट, सिक्स्थ एट्रीब्यूट, दैट इज द एज स्ट्रक्चर. एज स्ट्रक्चर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? एज स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन इज द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस. कि किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस. कितने यंग इंडिविजुअल्स हैं, कितने एडल्ट हैं, कितने ओल्ड पर्सन्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं. दिस इज मीन्ड बाई द टर्म एज स्ट्रक्चर. अब स्टूडेंट जो यंग है उनको हम रेफर करते हैं एज प्री रिप्रोडक्टिव. जो एडल्ट हैं उनकी रिप्रोडक्शन हो रही है तो उनको हम रेफर करते हैं, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में एंटर करते हैं, दे आर रेफर्ड बाय रिप्रोडक्टिव. और जो ओल्ड हैं दे आर रेफर्ड एज पोस्ट रिप्रोडक्टिव रेस्पेक्टिवली. तो किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस, दैट इज यंग, एडल्ट एंड ओल्ड, दिस इज नोन एज एज स्ट्रक्चर. द रेशियो ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स इन अ पॉपुलेशन वो डिटरमाइन करेगा द करेंट रिप्रोडक्टिव स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, तो अलग अलग जो एज ग्रुप्स हैं उनकी जो रेशियो है कि कितने रिप्रोडक्टिव हैं, कितने प्री रिप्रोडक्टिव हैं, कितने पोस्ट रिप्रोडक्टिव हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के रिप्रोडक्टिव स्टेटस को डिटरमाइन करता है कि वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन उसका पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है या उसका ज़ीरो ग्रोथ हो रहा है या उसका नेगेटिव ग्रोथ होता है. नाउ एज पिरामिड क्या है? एज पिरामिड स्टूडेंट एक मॉडल है जिसमें हमने ज्योमेट्रिकली द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ अ ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट किया है. सो द मॉडल रिप्रेजेंटिंग ज्योमेट्रिकली द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज एज पिरामिड. तो स्टूडेंट्स ये देखो दिखाया गया है, दिस इज द एज पिरामिड. तो एज पिरामिड में देखो हमने ज्योग्राफिकली या
डिफरेंट एजेस को रिप्रेजेंट किया है। तो जब हमने स्टूडेंट्स ये एज पिरामिड बनाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, जो सबसे लोअर वैल्यू है दिस इज द प्री रिप्रोडक्टिव, ये क्या है, दिस इज प्री रिप्रोडक्टिव। जो मिडल वन होता है दिस इज द रिप्रोडक्टिव, और सबसे जो टॉप मोस्ट होगा दिस इज द पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो ये जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट एज ग्रुप्स का इन अ पॉपुलेशन, जिसमें हम प्री रिप्रोडक्टिव को हमने बेस में रखा है, रिप्रोडक्टिव को हमने मिडल में रखा है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव को हमने टॉप पे रखा है, दिस इज नोन एज व्हाट, एज पिरामिड। अब देखो क्या खास बात है, एज पिरामिड कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के स्टूडेंट्स एज पिरामिड होंगे। एक होता है ट्रायंगुलर, एक होता है बेल शेप, एक होता है अर्न शेप, गड़वी के शेप का। तो सबसे पहले देखो ट्रायंगुलर एज पिरामिड, इस तरीके का एज पिरामिड। सो पॉपुलेशन हैविंग लार्ज नंबर ऑफ यंगर इंडिविजुअल्स। जो ट्रायंगुलर एज पिरामिड होता है स्टूडेंट्स, उसमें यंगर इंडिविजुअल्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही होती है, रैपिडली इंक्रीज कर रही होती है, और इसका पॉजिटिव ग्रोथ होता है। दूसरा है स्टूडेंट्स बेल शेप। जो बेल शेप स्टूडेंट्स एज पिरामिड होगा उसमें ऑलमोस्ट इक्वल नंबर होता है डिफरेंट एज ग्रुप्स का, और ये जो पॉपुलेशन होती है इसका स्टेबल ग्रोथ होता है, जीरो ग्रोथ होता है, मीन्स या ना तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना तो पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है। और तीसरी क्या है स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन विद लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड लेसर नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव, ये अर्न शेप का होगा, गड़वी के शेप का। इसमें क्या होता है कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर ज़्यादा होता है और प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर बहुत कम होता है। इस तरीके का एज पिरामिड हमें ये बताता है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है या उसका नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो एज पिरामिड्स हैं दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। देखो पहला है ट्रायंगुलर एज पिरामिड टाइप 1, दूसरा है बेल शेप एज पिरामिड टाइप 2, तीसरा है अर्न शेप एज पिरामिड विच इज़ द थर्ड टाइप। जो ट्रायंगुलर एज पिरामिड है वो बताता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, पॉजिटिव ग्रोथ को डिपिक्ट करता है। जो बेल शेप एज पिरामिड है वो स्टेबल पॉपुलेशन को डिपिक्ट करता है, इट मीन्स देयर इज जीरो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और जो तीसरा अर्न शेप एज पिरामिड है वो बताता है कि पॉपुलेशन जो है वो श्रिंक हो रही है, देयर इज नेगेटिव ग्रोथ ऑफ द population. So these are the 3 different types of age pyramid. So age pyramid एक graphical representation है different age groups का। तो इसमें हमेशा students जो प्री रिप्रोडक्टिव हैं वो बेस में होंगे, रिप्रोडक्टिव जो है वो मिडल में होते हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव दे आर प्लेस्ड एट द टॉप। और हमने तीनों डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो एज पिरामिड्स कर लिए। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेते हैं कि किस तरीके का एज पिरामिड जो है वो स्टेबल पॉपुलेशन को डिपिक्ट करता है, विच टाइप ऑफ एज पिरामिड इट डिपिक्ट्स नेगेटिव ग्रोथ और श्रिंकिंग पॉपुलेशन एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट 7th कैरेक्टरिस्टिक इज द सेक्स रेशो। सेक्स रेशो जो होता है इट इज डिपिक्टेड एज फीमेल्स पर 1000 मेल्स, कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, दैट इज नोन एज सेक्स रेशो। नंबर ऑफ फीमेल्स जो है स्टूडेंट्स इन अ पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है टू द नंबर ऑफ बर्थ्स। जितनी ज़्यादा फीमेल्स होंगी उतना बर्थ रेट ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सो दिस इज़ द 7th कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट जो स्टूडेंट लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हमने बहुत डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी स्टडी करना है, तो इसमें यहाँ पे मैं तुम्हें ब्रीफ में बता देती हूँ, दैट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है स्टूडेंट्स उसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एडेड पर यूनिट पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम ड्यू टू how the population number of individuals they are added in a population per unit time, due to higher rate of births or due to higher birth rate or immigration over the rate of deaths and emigration। तो कितने इंडिविजुअल्स ऐड हो रहे हैं पर यूनिट पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम ड्यू टू हायर रेट ऑफ बर्थ्स एंड immigration over the rate of deaths and emigration। Now growth of a population students उसे 3 factors control करते हैं।
पहला है बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल मैंने तुम्हें बताया है कि मैक्सिमम बर्थ रेट अंडर आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो इसको पॉपुलेशन जो है उसमें पहला फैक्टर यही होता है कि हर एक जो इंडिविजुअल है वो रिप्रोड्यूस कर रही है, वो अपना नंबर जो है वो इंक्रीज कर रही है ज्योमेट्रिकली। सो दिस इज द बायोटिक पोटेंशियल। हर एक इंडिविजुअल की एक नेचुरल टेंडेंसी है कि उसने अपने नंबर को इंक्रीज करना है, और दिस इज नोन एज बायोटिक पोटेंशियल। ये आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस में है स्टूडेंट्स, बट एनवायरमेंटल कंडीशंस कभी भी आइडल नहीं होती। कभी भी फूड जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, स्पेस जो है वो अनलिमिटेड नहीं है। देयर इज, ऐसा नहीं है कि कोई प्रेडेटर ही नहीं है, किसी को कोई खाएगा नहीं, कोई डिजीज नहीं हो रही। तो ये चेक्स हैं, इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। और तीसरी चीज क्या है स्टूडेंट्स? कैरिंग कैपेसिटी। तो अब ये एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या है? एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन को इंक्रीज नहीं होने देते। पॉपुलेशन जो है, इंडिविजुअल्स का मैक्सिमम बायोटिक पोटेंशियल है, मैक्सिमम बर्थ रेट है, उनकी ये नेचुरल टेंडेंसी है दैट दे शुड इंक्रीज देयर नंबर, बट जो एनवायरमेंट है वो रेजिस्टेंस दे रही है टूवर्ड्स द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन साइज। So environmental resistance क्या है स्टूडेंट्स? द सम ऑफ abiotic एंड बायोटिक फैक्टर्स जो चेक करेगी द राइज इन पॉपुलेशन साइज एंड प्रिवेंट्स द स्पीशीज टू रियलाइज देयर बायोटिक पोटेंशियल। एंड कैरिंग कैपेसिटी क्या है? कैरिंग कैपेसिटी को स्टूडेंट्स हम के सिंबल से डिनोट करते हैं। कैरिंग कैपेसिटी जो है वो एनवायरमेंट की होती है। एनवायरमेंट में ये एक एनवायरमेंट की एबिलिटी है टू प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ पॉपुलेशन। एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी होती है। एनवायरमेंट ये कहता है कि मैं इतने इंडिविजुअल्स को ही मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता हूँ। अगर नंबर इंडिविजुअल्स का इससे ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन रैपिडली डिक्लाइन कर जाएगी। तो इट पॉइंट्स टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि सर्वाइव कर सकते हैं इन अ गिवन लोकेलिटी। सो कैरिंग कैपेसिटी किसका कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट? कैरिंग कैपेसिटी एनवायरमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है। कैरिंग कैपेसिटी ये बताती है दैट व्हाट इज the number of individuals that can survive in a given locality. So students, this was all about today's topic. So this topic is students very important. आज हमने population के different characteristics के बारे में study किया. You all must know what is the definition of birth rate, what is death rate, age pyramids क्या होते हैं. कई बारी इनके ऊपर individual question भी आ सकता है. What is the carrying capacity? So this topic is very important students. I hope the topic is very well clear to you. In my next lecture students, I will do what are the various population growth curves, और ये topic भी बहुत ज़्यादा important है students. So do watch that lecture also. And till then students, thank you all of you.